today we are going to speak on how we are winning on social media. So something that started off as a medium to connect with your old lost friends and make new friends along the way has now transformed into this epitome of acceptance. आज सोशल मीडिया ने हमारी जनरेशन को ही नहीं बल्कि सबको एक माध्यम दिया है जिसमें वो खुल के खुद को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी आवाज़ को एक पहचान दे सके, बोल सके और अपने पैशन को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सके. मुझे याद है मेरी इंस्टाग्राम से शादी कैसे हुई थी. So I remember how I got married to Instagram while I was trying to get out of a very dark phase in my life. It happened to be one of the ways that helped me face my scars and battle through my biggest fears. लोग क्या सोचेंगे वो सबसे बड़ा fear था. But eventually, it stopped bothering me. I learned to accept myself despite my flaws and chose social media to share my love for wisdom and share light and love and help people look inwards and grow into better versions of themselves. And that's how my journey as flawed human started. Today, when we can choose to be anything or anyone in this world, आज जब हम कुछ भी हो सकते हैं, let's choose social media to be something through which you can share your passion or share positivity. Choose light is what we and our panelists, Dimple Arora and Tanya Mittal, are trying to express to all of you. They are inspiring millions by their love and passion for food and beauty respectively. So, Dimple here, Dimple, aka Food Lunatic, is a food blogger and an inspiration to her 138,000 big Insta family. She is a content creator who loves and lives for food and an extremely extrovert person, and she loves to be around people. And Tanya Mittal, aka Dr. Tiara, is a content creator, fashion influencer, beauty influencer, and she loves to create content which makes her soul flutter. She thinks of social media as her best friend, and apart from working for Google, she loves collaborating with many national and international brands across fashion industry, and we feel so proud of both of you. And thank you so much for being here. So moving onward to the first question. Sorry, you asked when it's over. Okay. So Dimple, what does it take to become a social media influencer? You are also an engineer, but you have decided to choose your passion as your profession. Talk about your journey and your interest in food blogging. कैसे शुरू हुआ और आपका दिन अब कैसा दिखता है? Hello everyone, my name is Dimple and I'm really glad that I'm here today. I never thought that, I'll get an opportunity to share my cleft journey with so many of you. So talking about content creation, I started creating content 4 years back when I had no idea where to start, what to start. So yeah, I am an engineer, like I have a BTech degree. But I always wanted to do something of my own, always wanted to start something which is my passion. And yeah, I have always been a foodie. बचपन में मम्मी बोलती थी कि when I was a kid, when I was an infant, मुझे डॉक्टर्स बोलते थे कि इसकी सर्जरी नहीं होगी क्योंकि शी इज़ वेरी वीक, आप इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ खिलाते नहीं हो घर पे. और अब जब मैं फूड ब्लॉगर बन गई हूँ, मेरी मम्मी शी वाज डिस्कसिंग दिस अ डे बिफोर एंड शी वाज लाइक कि कहाँ तो कुछ नहीं खाती थी और अब देखो दुनिया जहान का खाना खा रही है बाहर जाके. सो या इट मेक्स मी रियली प्राउड एंड
Yeah, let's not distract with the topic. So it feels very nice. I have more than 1 lakh followers today, and I get a lot of appreciation. I get to explore a lot of places. I am invited by national, international brands, and I get to travel also a lot. So yeah, and talking about what does it take to become a social media influencer, so I always wanted to, explore this with everyone. And जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग कुछ होता है. मैंने ऐसे ही रैंडम आई स्टार्टेड पोस्टिंग फोटोज. कॉलेज में जाते थे खाने वाने दोस्तों के साथ, तो आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग रैंडम फोटोज. And then gradually I started getting invitations from restaurants, from brands. They wanted me to work for them. They wanted me to make advertisements for them. So I was like stunned कि अरे यार wow, ये भी होता है. I mean, I can make money through this. I was like, wow यार, मतलब and when I told my parents about this, तो मेरे पापा ने बोला चल झूठ बोल रही है, तू कोई शाहरुख खान थोड़ना है तो तेरे को पैसा मिलेगा एडवर्टाइज करने का. तो यार मैंने कहा यार मतलब कोई मान ही नहीं रहा. बट या it gradually started, and I got a lot of love. I enjoy what I do. So अगर मतलब किसी को जैसे सोशल मीडिया पे कुछ करना स्टार्ट करना है, so you have to find your interest. For example, मुझे बहुत शौक है खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाने का ही शुरू करते हैं सोशल मीडिया पे. Since we have Tanya, she is a beauty fashion influencer. There are a lot of people travel. मतलब आप सोशल मीडिया खोलो ना तो वो भरा हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स से. और अगर इन्फ्लुएंसिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग, इतने सारे लोग बैठे, वी ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स. आप अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो इफ यू सी समवन स्टाइल्ड वेरी नाइसली, और एक इच्छा होती है ना कि अरे यार ये बहुत स्मार्ट लग रही है तो मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए. सो शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर. शी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग यू. We are just content creators who are trying to make content for our audience in a way so that they get influenced by us. Yeah. Thank you so much. And you so rightly said, we all here are influencers. Yes, definitely. Do you agree? Audience, थोड़ा जोर से बोलो यार. A big round of applause for all the influencers here. Woohoo! Okay. So Tanya, you are a beauty and fashion influencer, always into new trends and making makeup and posting photos and posting videos on social media. Today, you're often seen collaborating with brands. How do you feel about getting recognized by brands across the fashion industry? Does it help in boosting your confidence? Was it all easy? सब आसान था जब शुरू किया था, और आपकी स्टोरी क्या है कॉन्फिडेंस का, बताइए. It all started 5-6 years back when I was in college, and I was always very keen about writing, and my interest has always been into writing about fashion, beauty, lifestyle. But मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी खुद की pictures भी post करूँगी, because initially in my teenage I was not very confident about posting my own pictures. But what used to happen is when I started writing blogs, I couldn't post any random picture from internet because it gives issues with copyrights and everything. And that's when I got into an issue, and मुझे ये लगा कि अब तो photos डाल नहीं सकते, तो मुझे अपनी खुद की styling करनी पड़ेगी. And वो वाला phase था. That was the phase when मेरी ये facial surgeries भी complete हो गई थी through Smile Train only. And उसके बाद I got a lot of confidence to post my own pictures, and I randomly started posting my pictures with the content I used to write about fashion. And धीरे धीरे gradually वो increase होता गया. And as Dimple told that we were not aware कि फिर collaborations आना start हो जाती हैं. So I still remember 5 years back, my first collaboration was with Pantene. And they reached out to me that कि आपको हमारा product है और आपको इसके बारे में लिखना है, and you have to advertise it by holding it, and we will pay you also. So I was also really stunned that कि अच्छा मुझे लिखना है, मेरी फोटो डालनी है और मुझे पैसे भी देंगे. So this is how it all started, and it was never easy, as
Sakshi was asking what was my journey from Cliff से confidence. So, मैंने कभी my parents, like my mom, used to help me a lot. She was a pillar of strength with me. She's sitting right there in between you guys, and she's always been my biggest supporter. उन्होंने मेरे बचपन से ही पूरा फैशन इन्फ्लुएंसर बना के रखा था. कभी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया कि आई वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी वन एल्स. एंड बिकॉज ऑफ हर लव टूवर्ड्स मी आई वॉज ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट. एंड टिल नाउ I've never faced any situation, or like I've never feel like that I couldn't do this or that. And as Radhika also told that उनको consciousness होता था red lipstick लगाने से. The same happened with me also, but I was like teenage से ही I was always very focused on makeup कि ये लगा के देखना है, वो लगा के देखना है, but वही कि confidence नहीं आता था कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे. And today is a phase when brands reach out to me with their products and वो बोलते हैं कि आप हमारी लिपस्टिक लगा के ऐड कर दो हमारा. So this is how it all started, and it's going through, and I'm really grateful that I took a step forward each and every day to become who I am today. Amazing. Huge round of applause. Mentioned rules and criticism coming your way. So how do you feel about that? Do you feel sad? And how do you deal with such situations? So yeah, talking about getting trolled on social media, I do get trolled a lot. It's been 4.5 years when I started all this. So initially, जब मैंने शुरू किया था social media पे content डालना, so I never used to put my photographs. I never used to put my videos. I always used to post, खाने की photo. क्योंकि मैं तो food creator थी, तो मैं अपनी photo क्यों डालूं? ऐसा था दिमाग में. But then, as you go ahead, आपको अपने content के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि आपकी जो audience है वो entertained रहे. And it was very difficult, to be honest, because I was always afraid कि मैं अपनी फ़ोटो डालूँगी, मेरी नाक दिखेगी, मेरा कट दिखेगा, मेरे लिप्स दिखेंगे. But I don't know from where I got that confidence. मेरे घर वाले, मेरे friends, जिनके साथ भी, I think I am very, what should I say? I'm very blessed that I'm surrounded with so many positive people. My family, my mother especially, she has never made me realize that I am born with something different. Never. जब मैं I was in school, तो मुझे मम्मा बस बोलती थी कि you go, you study, you play, you enjoy. That's it. कभी ऐसा बोला नहीं कि कोई कुछ पूछेगा ना तो ये बोलना, कोई कुछ पूछेगा तो ये बोलना. Even my teachers in school, I have, I've been trolled by them because they were not aware. गलती उनकी भी नहीं है, but I don't know. And to be honest, I never felt bad. I used to ignore it. Talking about social media, रोज troll होती हूँ मैं, रोज. And as soon as any of my videos gets viral, तो मेरे comments में hate comments भर जाते हैं कि इसकी नाक पे क्या हुआ, और आप मतलब ऐसे कंसर्न क्वेश्चंस भी आते हैं, नॉट जस्ट ट्रोलिंग कि आर यू ओके, आपका बचपन में एक्सीडेंट हो गया था. मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे भी, जब मैं पूछती थी मम्मी से कि ये क्या हुआ है, तो मुझे बोलती थी कि तेरे कट लग गया था और मतलब चोट लग गई थी, बस कुछ नहीं है, वो हमने फिर ठीक करवा दिया. बाद में पता चलता है मम्मी यार आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे टाइम, कोई नहीं. तो सोशल मीडिया पे करते हैं ट्रोल, लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत ही ऐसे कमेंट्स आते हैं. मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू फील बैड, बट या कमेंट्स आते हैं बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, उनकी भी गलती नहीं है. बट बुरा लगता है ऑफ कोर्स. शुरू में तो आई यूज्ड टू क्राई, यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स कि यार ऐसे मुझे ट्रोल कर रहे हैं. मम्मी को बताती थी कि ऐसे बोल रहे लोग. मम्मी कहती छोड़ ना, तू बढ़िया कर रही है ना, चिल कर, ठीक है. सो आई जस्ट मूव्ड अहेड. मैंने कहा छोड़ो. एंड नाउ इट्स द टाइम, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. आई जस्ट इग्नोर. हाँ बोल लो, वो तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बस अपना करते जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाता है.
बट वही है, लगता है थोड़ा थोड़ा लगता है कभी. बट नाउ आई थिंक कि यू नो आई हैव रीच दैट पॉइंट इन लाइफ वेर आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, व्हाट आई डू, हाउ आई लुक. यू नो पीपल इवन फैट शेम, वो तो छोड़ो, मतलब फैट शेम भी करते हैं कि अरे कितना खाना खाती है, अपने चेहरे पे काम कर ले. तो मैं कहती हूँ यार बोल लो, कोई नहीं, मतलब. सो इट्स द टाइम दैट नाउ आई डोंट बॉदर एनीवन सेइंग एनीथिंग. Amazing. This is बात पे थोड़ा गाना हो जाए. गाना? कुछ लोग नहीं नहीं, आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग, आई एम सॉरी. मुझे Just- पूरा गाना just आता two भी नहीं lines. है. Someone you wanna join me? Yeah, I'll join You you. can, you also. Yes, we all will join. कैसे शुरू होता है? ऐसे Audience शुरू join होता है क्या? करेगी. कुछ तो लोग कहेंगे ऐसे ही शुरू. Audience join करेगी, right? मैं सिर्फ पहली लाइन गाऊंगी, बाकी आप गा. ठीक है. सब चले ना जाए यार. आप ज्वाइन करोगे पक्का? हम गाए थोड़ा खराब गाएंगे तो भी प्लीज बर्दाश्त कर लेना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आगे मैं छोड़ो समथिंग समथिंग बातें. मुझे नहीं आता, ये मैं याद करके आई थी इसलिए मैंने बोल दिया. सो यू मुझे सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना है. आप भी रोल होते होगी, आपको भी बुली किया जाता होगा, तो आप उससे कैसे डील करते हो? So the same thing as Dimple told कि बस करते जाओ अपना काम. मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा होता था, जैसे कंसर्न क्वेश्चंस भी आते हैं, लोग क्यूरियस होते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, ये क्या हुआ है. आई ऑल्सो गॉट कमेंट्स लाइक कि ये कैसे मेकअप कर रही है, व्हाई यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट. तो इनिशियली तो मुझे बहुत गुस्सा था, मैं रिपोर्ट कर देती थी कमेंट कि ये कैसे बोल रहा है मुझे कुछ उल्टा सीधा. बट अब तो ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ रही है. अब मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया इसने हमारी बेस्ट फ्रेंड को, तो वो जाके उल्टा कमेंट कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना. बट वही आई डोंट गिव मच अटेंशन टू देम, क्योंकि हमेशा पॉजिटिविटी की रेशो ज़्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू नेगेटिविटी. अगर 2 बेकार कमेंट्स आ रहे हैं तो 10 अच्छे भी आते हैं. तो आई ट्राई टू फोकस ऑन द गुड पार्ट. And yeah, that's how it has been with me, that I try to focus on the positive side. And after this clip thing, and because मेरे पहले भी बहुत सारे interviews and बहुत सारे social interactions हुए हैं where I was invited. So उससे क्या हुआ है, बहुत सारे cleft जो जैसे cleft warriors जो हम हैं वो भी reach out करते हैं, and they gave me long paragraph, long messages inspiring कि आप कैसे कर रहे हो, we are not confident. तो इंस्पायरिंग मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट पार्ट कि, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू इंस्पायर देम कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. आई एम नो डिफरेंट इन यू गाइज. सो या. वाओ, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, है ना? हाँ, इंस्पायरिंग है या नहीं? ओके, आप दोनों अपनी 20s में हो एंड यू हैव लर्न टू डील विद योर सिचुएशंस विद टाइम. But when you were a teenager, how was it as someone born with left? And who was your biggest motivator and cheerleader throughout all this time? So जब ये फेज था, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गेट ट्रोल्ड इन स्कूल, तो मुझे लगता था कि यार मतलब बुरा लगता था. मतलब कभी कभी तो मतलब देयर वाज अ जूनियर ऑफ माइन, तो वो ना, मैं जब भी रिसेस का टाइम होता था वो रोज मुझे कैंटीन में दूर से देखता था और ही यूज्ड टू यू नो डू सम एक्सप्रेशन जो मुझे थोड़ा ऑफेंड कर देता था, मतलब मेरी नाक के वर्ड्स पॉइंट आउट करके. तो बुरा लगता था. एंड देन यू नो देयर वाज माय टीचर इन स्कूल. अब लगता है कि एक दिन स्कूल जाके बोलूँगी कि देखो मैं ये हूँ आज. तो बोलती थी टीचर एक मुझे ना कि यू नो व्हाट हैपेंड विद योर नोज, व्हाट हैपेंड टू योर टीथ, ये ठीक कराओ, सर्जरी कराओ, इसकी क्या हुआ है. और कभी कभी तो मतलब बहुत सारे बच्चों के सामने बोल देना. तो यार एज अ मतलब मैं तो छोटी सी बच्ची थी ना, तो मैं तो रो देती थी. फिर घर आके मम्मी को बताती थी, मम्मी आज ये हुआ. तो मम्मी कहती थी कि इग्नोर करो. मम्मी ने कंप्लेंट नहीं करी उस टीचर की? मेरी मम्मी भी ना थोड़ी मेरी तरह शाय है. शायद थी, मैं नहीं हूँ अब.
तो मम्मी ने बोला इग्नोर करो, कोई बात नहीं. So yeah, मतलब it was not at all same when I was young, and it was worst I think. मुझे ऐसे मतलब मैं सोच के आई थी कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, अभी आई एम लाइक कि क्या बोलूँ. आपकी इनसिक्योरिटीज क्या थी? Insecurities, talking about insecurities, I was always afraid of coming in front of group of people. मैं स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, मैं अवॉइड करती थी कि नहीं मैं नहीं जा रही. और अगर जाती, मतलब अगर मैं एक बार मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो उन्होंने मुझे भारत माता बना दिया, बोले पीछे खड़े हो जाओ. तो मैं बोला ठीक है मैं ये कर लूँगी. तो मतलब बोलना किसी के सामने या अपना फेस लाना तो मुझे थोड़ा लगता था कि नहीं. जैसे मैम ने बोला कि किसी से भी पूछ लो आंसर, मुझसे मत पूछना. तो पीछे पीछे हो जाना कि सब देखेंगे, सब बोलेंगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपके क्या हुआ क्या. अभी भी मैं आई गो टू द पार्क विद माई नेफ्यू घर के सामने, तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, बोलते हैं बुआ आपके क्या हुआ, ये क्या हुआ. मैं क्या बताऊँ बच्चों को. मैं बोला बेटा बचपन से था मेरे, आप बड़े हो गए आपको पता चलेगा. तो या आई मीन I always try to educate people about this, but वही है मतलब it was not the same before. Of course, we understand that. But in all that tough time, who was the biggest motivation? Of course, my family. I live in a big fat family, और मतलब सब लोगों ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है. जब भी मैं अपनी कोई सर्जरी करके घर आती थी, आई वॉज ट्रीटेड सो नाइसली. मतलब मेरा रूम पूरा बलून से सजा देना, मेरे लिए केक लाना, मेरे लिए फ्लावर्स लाना. तो मुझे लगता था अरे वाह यार ये तो मतलब मजा आ रहा है. और सर्जरी करवाओ. Yes, so but you know the greatest thing and the blessing which I think I have, my parents, my family, they never made me realize कि ऐसा कुछ है. उन्होंने कभी ऐसा पिन पॉइंट ही नहीं किया कि नहीं ये बाहर जाएगी तो ऐसे होगा, ये बाहर जाएगी तो वैसे होगा. इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई टोल्ड माई मॉम दैट आई एम इन्वाइटेड हियर, तो अभी 3 दिन पहले ही शी वॉज सिटिंग विद मी इन द नाइट एंड शी वॉज सेइंग कि तू क्या बोलेगी, तू बताइयो, सब बताइयो, बचपन का बताइयो. मैंने बोला मुझे खुद ही नहीं बताया आपने, मैं क्या बताऊँ. तो फिर वो मुझे बताने लग गई. फिर शी स्टार्टेड क्राइंग. मैंने बोला मम्मा चिल, आई एम वेरी बोल्ड, I am very strong and I have overcome with everything. मुझे कोई रिग्रेट नहीं. मतलब मम्मी बोल रही थी कि जब तू पैदा हुई थी तो मेरे को दिखाया उन्होंने, तू नर्सरी में थी तो उन्होंने ना पहले मुझे कोई और बेबी दे दिया, फिर वो एकदम से ले गई. कहती नहीं नहीं ये चंचल की बेबी नहीं है, उसके तो लिप पे कट है. तो मेरी मम्मी ने बोला कि अच्छा कोई नहीं. एंड देन व्हेन she held me, she told me this, then she held me, instead of crying or instead of being sad about this cut, she was appreciating and she was saying कि मैं तेरे पैर टच कर रही थी, तेरे हाथ टच कर रही थी, तेरी आंखें देख रही थी. You have become such a great influencer right now. But ऐसे बहुत सारे left warriors हैं जो बनना चाहते हैं but नहीं कर पाते. आप भी समझते हो कि एज अ लेफ्ट पर्सन इतना डिफिकल्ट है खुद को कैमरा के सामने रखना, खुद की वीडियोस बनाना, पिक्चर्स पोस्ट करना, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे उस एज में स्पेशली. और अभी भी तो ऐसे जिनको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, जिनको खुद को कोशिश करना है कि मैं भी अपना पैशन फॉलो करूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँ, इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में, प्रोफेशन में आगे जाना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि हेजिटेट होते हैं तो उससे ओवरकम कैसे करें? व्हाट विल यू सजेस्ट? See, obviously it's not easy to come in front of camera, even if you're not someone who's born with cleft. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि we are camera conscious. Being someone with the cleft, obviously it was very difficult. कैमरे के सामने आना, वीडियो बनाना, क्योंकि एक डर होता है ना कि ट्रोल हो गए सोशल मीडिया पे, लोग बोलेंगे अरे she's so ugly. Because I do get comments like this, but I don't care. So, see, what I did, what
मेरा क्या फंडा था पहले तो, मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा कभी रियलाइज ही नहीं कराया गया कि मेरे को क्लेफ्ट है. तो पहले तो आई थिंक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट फॉर दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट यू हैव टू बी पॉजिटिव योर सेल्फ. अगर आप अंदर से ही पॉजिटिव नहीं होगे, रोते रहोगे, क्रिब करते रहोगे, तो फिर दिक्कत तो होगी बॉस. तो आई थिंक अच्छा सोचना, अच्छे लोगों से मिलना, एंड आई एम हियर, यू नो माई सोशल मीडिया हैंडल. आई वेलकम एवरीवन. आप मुझे डीएम करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, बहुत पसंद है मुझे. सो यू नो यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन. टॉकिंग अबाउट कैमरे के सामने आना, तो मैं भी बहुत शाय थी. मुझे लगता था कि अरे क्या होगा. अभी आज भी मैं आ रही थी तो मैं बहुत डर रही थी, बट अब मैं बैठी, मैंने कहा सब अपने ही है, कोई टेंशन नहीं है. सो यू नो कैमरे के सामने आने के लिए यू नो आई जस्ट ऐसी रैंडमली मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दिया. आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो गया. मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी ऑनेस्टली. मेरे घर में सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं उसे, टेक्नोलॉजी नहीं फ्रीक नहीं, बैकवर्ड यही बोलते हैं. ये तू भाई गूगल में काम करती है, मेरे पास इतने टर्म्स अच्छे नहीं है. तो किसी को वो नहीं है, मतलब अभी भी कुछ होता है सोशल मीडिया पे तो मैं ही सबको बताती हूँ कि ऐसे 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 करना है. तो नोबडी हेल्प मी ऑनेस्टली, बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी नाइस पीपल अराउंड मी. एंड वो जो कॉन्फिडेंस है मैंने खुद डेवलप किया. अब मुझे भी पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक इट डेवलप ग्रेजुअली. जब आपके आसपास लोग अच्छे होते हैं, आप उनसे बात करते हो, और अच्छे लोग भी तो आपको ही चूज करने हैं ना. अगर आपको लग रहा है कोई टॉक्सिक है तो यार छोड़ो ना. मतलब अगर कोई आपसे गलत बात कर रहा है तो जस्ट लेट इट गो. सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, फील गुड, वॉच इंस्पायरिंग वीडियोस. आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, एवरीथिंग. वी हैव सच एन अमेजिंग एक्टर हियर. उनके अलावा और कौन इंस्पायर कर सकता है. तो यू नो जस्ट वॉच गुड थिंग्स, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा ऑनेस्टली. So rightly said. आप अपने फर्स्ट वीडियो क्रिएटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं? फर्स्ट वीडियो तो जब मैंने वीडियोस डालना अपनी स्टार्ट करी थी तो मतलब तब तो इतना था नहीं ना एलैबोरेटिव. अब तो रील्स, अब तो ऐसा चैलेंजिंग कंटेंट बनाना पड़ता है. पहले क्या होता था, आई जस्ट यूज टू यू नो विजिट रेस्टोरेंट्स और अपनी फोटोज डालना कि खाने के साथ अपनी फोटोज डाली हैं, या फिर अपनी खाते हुए वीडियो बनाई है, टेलिंग एंड एक्सप्रेसिंग कि खाना आपको कैसा लगा है. तो मतलब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कौन सी वीडियो थी. बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने. अब तो तब से लेके आज में क्या बहुत बड़ा फर्क है? फर्क ये है कि अब तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक शॉट में वीडियो दे देती हूँ. पहले तो होता था अरे इतने रीटेक्स, अरे रुक 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 मेरी लिपस्टिक, अरे रुक, अरे लिप की शेप अच्छी नहीं लग रही, बाल ठीक करने दे. नाउ आई एम लाइक चक इट, आई एम गोना किल इट. Practice makes perfect. यस ऑफ कोर्स. Give a huge round of applause to Dimple Arora. Same question to you. What is your message for left warriors who want to record their videos, post pictures, be active on social media, but they hesitate and fear to do so? So आप क्या suggest करना चाहोगे? My suggestion is also कि you have to be positive within yourself. अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं फील करोगे अपने आप के बारे में तो you won't be able to post any pictures or videos. So मैं क्या करती थी, आई स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिकॉज जैसे डिम्पल टोल्ड की वीडियोस वगैरह तो अभी आई हैं. पहले फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो ईजी एज कम्पेयर टू वीडियो, बट जब आपको लाइव बोलना होता है तो दैट इज़ काइंड ऑफ चैलेंजिंग इन द बिगिनिंग फॉर मी. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. फिर और फ्रेंड्स, आपका ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मतलब यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु ऑलवेज सपोर्ट यू. एंड चाहे एक दो लोग ही हों, एक दो फ्रेंड्स जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, इनफ होते हैं. फैमिली तो ऑफ कोर्स इज़ ऑलवेज देयर एंड उनके तो आप हमेशा ही फेवरेट रहोगे. बट हाँ, दो तीन लोग
2-3 क्लोज फ्रेंड्स आपके होने चाहिए जो हमेशा आपको सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे को जब भी कुछ मेरा डाउन फेज या लो चल रहा होता है मैं वहाँ जाके रोना चालू कर देती हूँ। फिर वो 1 घंटे के सेशन में मुझे मोटिवेट कर देते हैं और फिर मैं वापस अपना बैक ट्रैक पे आ जाती हूँ कि हाँ मैं हीरोइन हूँ, चलो बनानी है वीडियो। The best therapy ever, है ना? या मैं यही बोल देती हूँ हर जगह ताकि मैं हीरोइन हूँ, तो लोगों को भरोसा करना ही पड़ता है फिर। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ। तो हमें ऑडियंस में पूछना है, आपको किसी को यहाँ पे कोई सवाल है? Anyone? हाँ, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता है। आपको सवाल है? What's your name? मेरा नाम उंजन है। मेरा ये सवाल है कि ये वीडियो बनाने का सोचे तो मतलब बीन लस्टी हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है ना कि कैमरा मतलब कैसे फेस करें, तो मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है कि हमें उसको कैसे स्टार्ट करना है, हमें क्या है? Few tips. पहले तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप क्लेफ्ट, आपके पास क्लेफ्ट है या आप ऐसे इंसान हो जो क्लेफ्ट के साथ बॉर्न हुआ है। नहीं यार, इट्स लाइक यू नो आई थिंक 1 in 700 kids आर बॉर्न विद अ क्लेफ्ट, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। शुरू में मुझे भी होता था कि क्लेफ्ट है, लोग क्या बोलेंगे, बट जैसा बोला ना कि अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करो। अगर आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज योर नीश एंड एवरीथिंग। और आजकल अगर आप अपना फेस नहीं दिखाओगे सोशल मीडिया पे तो नहीं चलेगा, राइट? तो यू नो टॉक विद योर फैमिली, टॉक विद योर फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू, एंड ऑनेस्टली सेइंग आपकी फैमिली से ज़्यादा अच्छी थेरेपी आपको कोई नहीं दे सकता। फैमिली एंड फ्रेंड्स, टॉक विद देम, यू नो, डिस्कस कि आपको ये करना है। आई एम प्रिटी श्योर दे विल ऑल्सो यू नो हेल्प यू। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी वीडियोस बनाती थी, मतलब अभी भी वो ऐसे फ़ोन टेढ़ा पकड़ती हैं बट बना लेती हैं। तो वो बहुत, मतलब एवरीवन सपोर्ट्स मी इन माय फैमिली। इतना मतलब सपोर्ट अभी रिसेंटली मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्टूडियो पूरा प्रॉपर बना कर दिया है कि तू यहाँ शूट कर, तू बहुत दिमाग ख़राब करती है हमारा, तू ऊपर जा टॉप फ्लोर, शूट योर वीडियोज़। So my question to you all is, all three of you it can be, that you all are content creators and you always have to, you know, be ahead with all the creativity in your head. Okay, हर दिन कुछ नया आपको लाना है सोशल मीडिया पे, तो कभी ऐसा होता होगा कि you might have a creative blockage one day, okay, या ऐसे लगता है कि कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ नया आ नहीं रहा है दिमाग में, तो तभी आप क्या करते हो? हाउ डू यू कम एंड यू नो कनेक्ट, calm down, connect to your inner self, and then again come back from the blockage? Thank you. Nice That's my question. तो एज साक्षी टोल्ड मी दैट आई एम वर्किंग इन गूगल ऑल्सो, तो मेरा क्रिएटिव ब्लॉकेज तो वो 5 दिन में हो जाता है जब मैं गूगल में काम कर रही होती हूँ। तो आई मेक श्योर कि मैं वीकेंड के 2 दिन आई शूट, बिकॉज मैंने टारगेट सेट किया है कि 5 दिन आई एम वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब, तो 2 दिन आई हैव टू गिव इट टू माई सेल्फ टू बी आउट देयर, चाहे आई गो फॉर इवेंट्स, आई मीट माई फ्रेंड्स और आई शूट वीडियोज़। एंड डेफिनेटली क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है, तो बट रील स्क्रॉल करो, आजकल सब 1-2 घंटा तो देखते ही हैं, बट मेन थिंग इज़ कि आप जितना कंज्यूम करते हो आप उससे ज़्यादा प्रोवाइड भी करो। अगर आप 80%, मेरा तो 80-20 रेशो है कि मैं 20% देख रही हूँ, 80% मैं पोस्ट करूँगी। तो या बाकी सराउंड योर सेल्फ विद क्रिएटिव पीपल, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी, जो लोग आपको पसंद करते हो, आपको देखना चाहते हो, एंड दैट्स हाउ यू विल कीप ऑन गोइंग। या That's a really pro tip. Abha, did you like that tip? Yes, absolutely. That's what So you will be using that, right? Absolutely. Okay. Thank you. Thank you so much, Dimple, and thank you, Tanya. Thank you. We had a great time, and we feel so proud of you. I can say that on behalf of everyone present here, right? A big round of applause for both of them.